So, good evening, everybody. Today we are at RN Talks, and I am founder Ranjita Nath Ghai. And थोड़ा सा आज हमको हमारा सेटअप थोड़ा अलग लग रहा होगा because some technical errors जिसके वजह से हम थोड़ा लेट हो गए. So we had to shift from a normal streaming to Zoom. But anyway, all's well that ends well. हमारा hopefully ये वाला session अच्छा ही जाएगा because हमने medium shift कर लिया है. So today on our show we have Mrs. Manjulata, and she is a mentor. She is been mentoring in Arunachal. वो सिर्फ यही नहीं कि regular school बच्चों को भी पढ़ाती है. She does a lot of charity. She teaches children who cannot afford education, and she loves flowers, and she is much more. Plus, she has been awarded by Arunachal State for her contribution in the field of education. So एक स्टेट अवार्डी भी है. सो ये कोई कम बात नहीं है. हम में से कितने लोग स्कूल से बाहर ही नहीं निकल पाते और ये स्टेट अवार्डी है. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस मंजुलता ऑन आवर प्लेटफॉर्म. वेलकम मंजू जी. और बहुत अच्छा लगा आपने हमारे को आज यहाँ पे ज्वाइन किया. और मैं अपने दर्शकों से ये भी बता दूं कि हम भी इनके अवार्ड लिस्ट में ज्वाइन होते हैं by saying that she is a RN Talk Swami Vivekanand Karamveera Award इनको मिला है, and she is a Karamveera. If I am not wrong, last year भी आपको award मिला था, स्वामी राधा कृष्णा वाला RN Talks का मिला था, right? So field of education, तो ये हमेशा से अपने एजुकेशन को लेके ना बहुत सीरियस और रहते हैं और उतना ही अच्छा आगे बच्चों को देते हैं. एंड यही नहीं, ये पोएटिस भी हैं, ऑथर भी हैं, तो हम सुनेंगे और एक कविता भी आपसे सुन के जाएंगे मंजू जी, बिकॉज आप कवित्री भी हैं, हमको सुनने में आया. तो एक रख लीजिएगा लास्ट में मीटिंग खत्म करने से पहले. कहते ना जब पूरा खाना खा लिया हो तो एक स्वीट डिश बहुत जरूरी होती है मुंह में मिठास करने के लिए. तो आपकी कविता से हम एंड करेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं हम आपसे. आपने कब सोचा कि इस टीचिंग लाइन में आप आएंगे, या कैसे प्रेरित हुए? हम किसी को देख के प्रेरित होते हैं ना कि ये मुझे करने को मन करता है. तो आपका प्रेरणा स्रोत कहाँ से आया? Okay, first of all, I do wish you a happy good evening also, and I'm so much thankful that you have invited me on your so much, you can say, renowned platform. Rather, I'd use the word here because RN Talks is a widely known platform, and I'm very much happy for this. Now, your question that मुझे कब यह आभास हुआ कि मुझे इसमें आना चाहिए, मैम, I'd like to tell you one thing very frankly, that my life's motto was not to join the teaching profession. ये तो मेरे लाइफ का मोटो कभी रहा ही नहीं, because I was a great lover of art and culture from the very starting. But I was brought up in such a kind of conservative family, जहाँ मेरे डैड की इच्छा ही सर्वोपरि मानी जाती थी. So my dad wanted, according to him, for a lady the best profession in the world is teaching. उनके हिसाब से यही था. And that is the reason why he told me, if you want to do something, either you become a doctor, and if you are unable to become a doctor, then the next option I'd give you that you can become a teacher. इसके बाहर आपको कहीं जाना नहीं है. Otherwise, ma'am, you see, I was a great lover of song, dance, music. मैं चाहती थी इस फील्ड में आना, but my dad, according to him, these are the work of, or these are the jobs of the lower category people. उनके हिसाब से ये था. And the child of a means well-to-do families, they should not do such kind of things. And that is the reason why मुझे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा, और उनके हिसाब से I have to carry my education. Graduation किया, then I did my B.Ed. After that, I did my M.Ed. M.Ed, of course, I did according to my own will. यहाँ मेरी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. बस ये दिमाग में ख्याल में आ गया, B.Ed जब कर ही लिया, टीचिंग प्रोफेशन में जाना ही है, तो why don't I do my masters also? कर ही लेती हूँ. Maybe it may be of great value in the future also. तो मैंने M.Ed भी कर लिया.
And when I was doing my MAd, I was doing my research, means I was busy in going from schools to school because the topic I was given, attitude of teachers towards teaching profession in Arunachal Pradesh. ये topic मुझे मिला था. So I have to go visit different schools, means especially lower Subansiri district. Number of schools were there. In remote areas, so many schools were there, and that was a very tough thing to visit. और मेरे डैड जहाँ इतने कंजर्वेटिव that a girl should not go outside, you can just imagine मैं अकेली ऐसे समय में जाया करती थी. Because my dad, he was, in those days, I was taking my education from Naharlagun, is Doimukh, that is Arunachal University. And in those days, my dad was already transferred in Aizawl. So from there itself, he told me, बेटा कहीं जाना मत, आपकी रिसर्च हो या ना हो भाड़ में जाए, लेकिन कहीं बच जाना मत. But mom, she was very strong. She told me, जाओ, जो होगा तुम्हारे पापा से मैं निपट लूंगी. जब तुमको तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुमको टीचिंग कराना है, तो इस काम में पीछे क्यों? तुम्हें क्यों तुम्हारी टांग पकड़ के खींचते? यू गो, जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ. Don't be scared of your dad. And so I covered various schools alone. And you know, ma'am, मेरी जो स्ट्रक्चर था ना, इट वाज सो डेलिकेट, दुबली पतली देखने में. मैं कहीं से भी एमएड की स्टूडेंट नहीं लगती थी. एंड wherever I had gone to collect the data, the attitude of the teachers, I used to see the expressions on their face. मुझे इस तरह से करके वो देखा करते थे, हैं, कौन हो तुम? So whenever I used to give my questionnaires, like you are, उनको पहले लगता था have the department send you to collect the data. मैंने कहा no sir, मैं एमएड कर रही हूँ और मुझे अपने रिसर्च के लिए डाटा चाहिए. So they used to see me very strangely. You are joking me? तुम तो बहुत छोटी सी दिखती हो. मैंने कहा no sir, I'm not joking you. थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज कर गया है मंजुलता आपका. सो जब तक वो अनफ्रीज I होता told me बेटा देखो वांट्स निकला है, आप जाके अप्लाई करो. उस समय भी कहीं ना कहीं दिल में था, नो आई डोंट वांट, मामा मैं पहले पढ़ लेती हूँ. लेकिन पागल हो क्या, जाओ करो, कोई जरूरी है एक बार में तुम्हारा हो जाए, कर तो लो, तुम्हारे सभी फ्रेंड्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो मैंने अप्लाई कर दिया. तो मेरा कॉल लेटर आया. द डे आई वेंट, जस्ट आई वेंट रैंडमली विदाउट एनी प्रिपरेशन. देखते नहीं होगा कोई बात नहीं, बट माई मोटो वॉज टू कंप्लीट माई रिसर्च. वहां एक अलग से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था मेरा. सो आई गिव माई रिटन, आई केम इन टॉप 10. And when I came in top 10, I was called for Viva. My mom, she was so happy. मेरे पापा को तो ये सब कुछ पता नहीं था. And she told, again when I was called for Viva, then my mom, she told, जाओ जाओ, तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, यू गो एंड गिव द एग्जाम. कोई जरूरी नहीं, एवरी टाइम से यूज्ड टू से, कोई जरूरी है कि तुम एक ही बार में आ जाओगी, ना भी आए तो एक्सपीरियंस तो हो जाएगा तुमको. So I went there, I gave my viva, and my voice, it was so delicate कि जब मैं viva दे रही थी, they were asking the questions. They gave me chalk, duster, and they asked, आप suppose if they gave me a topic also noun, how you will teach the word noun to the class. Take us as your student and teach us. And when I started teaching, one of them told, आपकी आवाज तो बहुत छोटी है, बच्चे कैसे सुनेंगे इतनी? कैसे तुम बच्चों तक इतनी आवाज पहुंचाओगी? दिमाग में कोई आंसर नहीं आ रहा था. देन आई टोल्ड, मौका मिलेगा तो गले में गार्गलिंग करके आवाज बड़ा कर लूंगी मैं. दे laughed a lot. Laughed a lot. बोले okay, your confidence level is too high. And when I started teaching them what is noun, then they told, okay, simply I was willing to see your confidence level. अब हमें बच्चा मत बना लेना. Okay. Then various type of questions they asked, and they were all satisfied also. When I came out, my lot of friends were there. They told me, कैसा हुआ मंजू तुम्हारा? मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे, मैंने बता दिया, I don't know.
whether they are satisfied with me or not, लेकिन देख के तो लग रहा था कि वो खुश थे. Then my friends told, देखते हैं, because मेरी जो the way of treating the friends, I was very much, you can say, confined to my own. मैं ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं थी लोगों से, ना मेरा बड़ा फ्रेंड सर्किल था. मेरी जिंदगी अपने इर्द गिर्द एक दो दोस्तों के इर्द गिर्द ही मेरी थी. बहुत बड़ा मेरा फ्रेंड सर्किल नहीं होता था. And that is the reason why in my friend circle I was always known as a timid girl. So that is the reason my friends they laughed. देखते As हैं a इस which timid girl? का क्या होने वाला है. Timid girl. Timid, हाँ, timid girl. Right. तो उन्होंने कहा देखते हैं इसका क्या होगा, इसका क्या होने वाला है. And when the result came, ma'am, all my friends were so surprised that again I was selected in the top 10. और वो भी English language पर. And my friends, जो मुझे timid कहा करती थी, they means hue and cry was there in them. And they all came to me. कैसे तुम्हारा selection हो गया? मैंने कहा you go and ask the director how I was selected. तुम मुझसे सवाल क्यों कर रही हो ये? बोले कुछ किया तो नहीं. मैंने कहा कुछ क्यों करूंगी? I am not interested in the profession. ये तो मॉम के कहने से मैं गई थी. And I was already appointed. I was sent to a school here in Arunachal Pradesh itself. And जिस स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था मैं वहाँ की स्टूडेंट भी रह चुकी थी मैं. Oh. I went there. I joined that school. I was so happy to see the school. And when I talked to the headmaster of the school and मैंने बताया कि sir, I was the student of this school also. He was also very happy. And now the question was in before me कि मुझे अपने research भी पूरा करना है. Because this was not my priority. ये तो एक कहते हैं ना राह में चलते चलते अचानक कुछ मिल गया छूट था. जाता है कुछ. हाँ. Yes, ये सब चीजें मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था. Then when 1 month was over, because the headmaster of my school was well known to my dad. So one day I just rang to my dad. और पापा को भी तब तक ये बात पता ही नहीं थी कि मुझे जॉब भी मिल चुका है. ये बिल्कुल उनको पता नहीं था. And when I rang to my dad, and then I told कि पापा मैं already teacher बन चुकी हूँ. बोले how it happened? कहाँ हो तुम? मैंने कहा पापा मैं जीरो में हूँ. उस जगह का नाम था जीरो. मैंने कहा पापा मैं जीरो में अपॉइंटेड हूँ. हाउ इट हैपन? कब तुमने इंटरव्यू दिया? तो मैंने कहा दिया ना, बस ये सोचो कि बस कबड्डी खेलते खेलते अचानक वो चीजें मेरे हाथों में आ गई है. सो ही टोल्ड आर यू जोकिंग मी? मैंने कहा नो डैड आई एम नॉट जोकिंग. तो मेरी मॉम ने कहा आ जाओ इसके साथ कुछ प्रॉब्लम से राइज हो रहे हैं. बोले व्हाट इज द थिंग? मैंने कहा पापा मुझे ना अपने रिसर्च पेपर पहले पूरा करना. आई डोंट नो हाउ टू टेक द लिफ्ट. कौन है तुम्हारा हेडमास्टर? Because my dad, he was accounts officer in SSB. So he was a well-known figure in Arunachal Pradesh. बहुत लोग उनको जानते थे. And headmaster himself was a friend of my dad. तो उन्होंने पूछा कौन है तुम्हारा headmaster? When I took the name, oh, okay, I'll talk to him. उसका नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं बात करता हूँ. He talked to him and then he told कि बेटी को लीव दिलाओ. जब तुम हो तो मुझे क्या फिक्र करना इस बार, मुझे आने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए. Then he told, you know sir, this is such a difficult thing. नए नए जॉब में कहाँ लीव मिलता है? बोले वो मैं नहीं जानता हूँ. जब तुम्हारे पास मेरी बेटी है तो मुझे क्यों फिक्र करना इस बात का, उसका रिसर्च पूरा करना है. Then somehow he managed and I was given leave for 6 months, not continuously, break करके 3 months. After that again I joined for 1 month, again 3 months, again I joined for 1 month. ऐसे करके without pay मेरे, and within 6 months I completed my research paper and then again I joined the job. And from that time onwards I'm continuing. जहाँ टीचर बनने की चाहत तो कभी थी ही नहीं, लेकिन जब प्रोफेशन ज्वाइन ही कर लिया, ऐसा इंटरेस्ट जागा इस प्रोफेशन में, उन बच्चों के चेहरे देख देख कर, वो बच्चे स्पेशली जो ऑलरेडी बच्चे पढ़े मीन्स यू कैन से हियर, जो जानते थे, जो ऑलरेडी काफी कुछ नॉलेज रखते थे, उनके प्रति उतनी मेरी कभी इच्छा जागी नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एडजस्टेड इन दैट. लेकिन वो बच्चे जो नहीं कर दो दे वांटेड टू,
yes, wanted to have the education, लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता था कि they cannot complete the education because in those days, first of all, I was given the primary section, okay, because they wanted to see me, taste me, even कि देखते ही प्राइमरी सेक्शन में कितना ये कर पाती है। ये मीन्स मुझे अपनी लाइफ में टेस्ट बहुत देना पड़ा है खुद को प्रूव करने के लिए, और मैंने हर चैलेंजेस को स्वीकार किया। चलो इस प्रोफेशन में आई हूँ तो चैलेंज स्वीकार करते हैं ना, कर लेते हैं। तो जब मुझे प्राइमरी सेक्शन मिला, वो छोटे छोटे बच्चे, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल देम, वो हर वक्त मेरे आगे पीछे क्लास में घूमे, मंजू मैम ये बात, मंजू मैम ये बात, मंजू मैम यू आर हैविंग सो लवली हियर्स, आपकी साड़ी कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा अरे आपका बेटा नेल बैठ पॉलिश तो बदल जाओ। ली है, वो तो सब चीज। हाँ आज आपने नेल पॉलिश बदल ली है, आपकी फराना हाँ वाली थी, आज यस यस है आपके फराना वाले, आज आपने पैर और में नेल पॉलिश क्यों नहीं लगाई? हाँ हाँ क्या क्या ऐसी देखते ऐसी हैं बच्चे, क्या क्या देखते हैं जो तो इतने अच्छे से हम आईने में खुद को नहीं देखते, जो सब कुछ ये बच्चे देख जाते हैं। हाँ हाँ राइट राइट राइट। तो and my headmaster, he used to keep on observing me, how she's taking the class, those little children, how she's tackling them. But you know, जब मन में एक डिटर्मिनेशन ले, फ्रीज हो गए थोड़ा सा, तो चलो तब तक मैं ही बोल देती हूँ, आई डोंट वांट दिस टू बी एम्प्टी। जो अभी हम बात कर रहे थे, ये चीज मैंने भी फेस की तो है। मैं सबको चॉकलेट दूंगी। एंड चॉकलेट के लालच में वो क्लास में बैठना शुरू किए, जैसे राइम से आप याद करके सुनाओ मेरे को, और सही से एक भी गलत वर्ड नहीं होने चाहिए। दे स्टार्टेड टू डू दैट, लेकिन हाँ मेरे जेब भी खाली होने लगे। कंडीशन जो किया था, कभी चॉकलेट का और कभी उनको छोटे छोटे ये क्या कहते लॉलीपॉप का, इन दिस वे आई स्टार्टेड टू कंडीशन देम। और जब त्योहार आते थे लाइक दिस नेशनल फेस्टिवल्स, मैं बलून बच्चों को बहुत पसंद होते थे, वो भी मैं ले जा कर दिया करती थी। And in this way, I started to control the classes, and the children they started to learn the things very speedily. And the result when it came, children, headmaster he was so happy to see the result कि नर्सरी के बच्चों का रिजल्ट सो नाइस, प्लेफुल नेचर में जो तुमने बच्चों को सिखाया है, इट इज रियली एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। उसने कहा कि मैंने कभी नहीं इस तरह से देखा था, और तुम्हारी छोटी सी काया को देखकर तो मुझे यही लगा था जाने तुम कहाँ से इन बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगी, लेकिन उन्होंने एक कमेंट दिया, इस छोटी सी काया में है बड़ा दम। because I'm a short figured girl. I was still now I'm short figured. और इस तरह से मैं फिर मिडिल में आई, मिडिल से सेकेंडरी में आई, एंड नाउ इन हायर सेकेंडरी पीजीटी हूँ मैं। और these days I'm teaching as working as English teacher here in this school. लवली मैम, पर इसके अलावा आपकी और भी तो बहुत सारी हॉबीज हैं, लाइक यू वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। Yes. मैंने अक्सर आपकी फोटोग्राफ्स आपके अलावा सिर्फ फूल ही देखे हैं। Yes. Right, right. डिफरेंट फूल, और एक तो बात ये है ना कि यू आर इन अरुणाचल, यू नो, वहां पे ऑर्किड्स शायद जंगली उगते होंगे, पर यहाँ पे ऑर्किड्स हाँ जी। देखना बहुत मुश्किल है। Yes. ऑर्किड्स अरुणाचल में अरुणाचल, मैं आप सबको बता रही हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं, अगर नहीं गए हो तो जरूर जाइए। इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। यू गो टू एनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फ्रॉम असम, गो अपर असम के तरफ से अगर आप जाएंगे तो ये अरुणाचल, शिलोंग, आप भूल जाओगे, आप भूल जाओगे कि पीछे भी एक दुनिया है एकदम। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आकाश में चल रहे हो, बादलों के बीच, चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो ऊंचाइयों पिक्चर में बताई थी, जब आप पहाड़ों के बीच में होते हो ना तो अपना छोटा होने का एहसास आता है। तो जो अहम होता है ना, पहाड़ Yeah. आप अहम को बहुत अच्छे से Yeah. किल कर देता है। सो हाँ यू आर अ मोर ग्राउंडेड पर्सन, and you will love the nature, the fauna, the everything। मैं बोल नहीं सकती, मेरे को आपको वहां ले जाना पड़ेगा।
the birds out there, the Hornbill Festival, सब कुछ इतना अलग है कि Yes. आप जिंदगी में एक बार जरूर जाना, वरना you missed something beautiful, I would say. So हम Yes. अरुणाचल में आप आके आपका ये फूलों को देख के आपका इंटरेस्ट इनके तरफ आया था, या बचपन से you were into gardening, or it was kind of and what do you say, imbibed, किसी को देखकर आप प्रेरित हुए हो इसके लिए? No, ma'am. The love for nature, especially for flowers, it was from my very childhood. बचपन से मुझे इसमें इंटरेस्ट रहा है. And my dad, he used to get bungalows. क्योंकि he was accounts officer, so naturally he used to get bungalows. और bungalows में जगह तो होते ही हैं. Though my mom and dad, they were not so much interested in flowers. They were interested in kitchen garden. लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट था. I used to go to different houses. I used to ask those seedlings. I used to go to nursery. मैं मांग के लाती थी और मैं खुद ही गड्ढा बनाना, गोबर कलेक्ट करना. I used to plant those flowers, and when everything is my flower garden used to flourish like anything. And आप जानते हो SSP भी means whenever any dignitaries, क्योंकि IB भी मेरे घर के बगल में हुआ करता था. Whenever the dignitaries they used to come to stay there. और एक बार मेरे घर की ओर जरूर झांकते थे और मेरे पापा से कहते थे, हमें तो लगता है कि आपके घर को आईबी बनाना चाहिए, इस आईबी में तो कुछ रखा नहीं है, कितना खूबसूरत आपका बंगलो, तो मतलब आपका घर एक्चुअली अच्छी जगह है, तो कौन करता है ये सब. सो माय डैड प्राउडली यूज्ड टू डिक्लेयर, ये मेरी बेटी की इंटरेस्ट है. पता नहीं उसको कहाँ से, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं चीजों में, लेकिन उसको बड़ा इंटरेस्ट है. सो फ्रॉम माय वेरी चाइल्डहुड दिस काइंड ऑफ लव फॉर द फ्लावर्स, स्पेशली रोज, और अब तो खैर बहुत ज्यादा है. इट हैज बिकम ए पैशन फॉर मी. और इस नेचर और मंजू, आप दोनों को एक साथ जोड़ के रख सकते हो आप. मेड फॉर ईच अदर आप कह लीजिए. Ma'am, you're also a very big dog lover. Yeah, I Maybe do. adopt करें, if I'm correctly placed, then you have also adopted dogs, and they're not those pedigree dogs. They're, I think, the local dogs जिनको आपने adopt किया है. Yes, yes. एक आई हैव 2 डॉग्स, और एक जो है ही वाज ब्रॉट फ्रॉम तवांग, वहाँ का लोकल डॉग है, दैट ब्लैक वन. And the red one, he was a token of love from the tutor of my little son. छोटे बेटे का ट्यूटर ने उसको बर्थडे गिफ्ट में दिया था, उस लाल वाले कुत्ते को. Okay. और गिफ्ट में आया तो वो ऐसा प्यार से पला कि आज भी वो बोथ ऑफ देम आर 9 years old, लेकिन आज भी वो हमारे लिए बाबू ही हैं. बच्चे की तरह ही वो ब्रॉटअप किए गए हैं. एंड इफ एनीथिंग, मैं अगर एक डांट लगाऊं ना उन कुत्तों को, बिकॉज उनको केयर करना मेरा काम है. दो द चिल्ड्रन दे हैव ब्रॉट, लेकिन बीमार हो जाए या उनको कोई तरह की तकलीफ हो, वैक्सीन देना हो, इवन द वेट विल आल्सो से कि मैम अगर मैं वैक्सीन देता हूँ तो आप साथ में रहना, बिकॉज योर डॉग्स आर बियॉन्ड कंट्रोल, नो वन कैन कंट्रोल देम. आप ही हो जो कंट्रोल कर सकते हो. तो उनको कंट्रोल कर मीन्स यू नो मैम कि कुत्तों को कंट्रोल कर, जस्ट टू शेयर द लव टू देम, कीप ऑन टॉकिंग टू देम, श्योरली दे विल सी यू, लिसन यू. बस यही करना होता है मुझे. जब उनको वैक्सीन दिलाना, बस गोद में लेके बैठ जाती हूँ. मैंने कहा बेटा शांत रहना, मम्मी की इज्जत का ध्यान रख लेना, किसी को बिकॉज दे आर, उनकी नेचर जो बाइट करने की नेचर, बहुत गंदी आदत मेरे दोनों कुत्तों में है ये. तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो बाइट ना करे किसी को. सो मीन्स वो जितने समय वैक्सीन होती है ना, मेरी भी जान जो हलक में अटकी रहती है, कहीं कुछ हो ना जाए. बट अभी तक तो सब ठीक रहा, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है. ऐसा मुझे याद आया, I had a cat and I was in Binjang that time, and वो बदमाश भाग गया था घर से. Okay, male cat. And किसी बड़े बिल्ली के साथ लड़के आया था, व्हाइट कलर का था, वो पूरा खून खून हो रखा था. ऑब्वियसली घर का डोमेस्टिकेटेड कैट अगर किसी बाहर के बिल्ले से लड़ेगा तो पिट के ही आएगा ना. तो हाँ हाँ. वो कटा कुटा छिरा हुआ था. सो मैं गई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी उसको लेके डॉक्टर के पास गए थे. आई वाज सपोज टू कम द नेक्स्ट डे. उन्होंने सोचा मम्मी के आने से पहले खून खान सब साफ कर देंगे, शील अदरवाइज फ्री हो. सो लेके गए. जो आपने बोला, डॉक्टर ने बोला कंट्रोल करो इसको. ये कहते नहीं भैया इलाज कर दो आप, कंट्रोल हाँ. करने के लिए दिल्ली में बैठी है.
ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। एंड उसको थोड़ा सा दवा लगाने में उसने डॉक्टर को कैंसर, Yeah, they scratch the people. हाँ, Yeah. और वो उनके आगे के दो पैर जितने अच्छे चलते हैं, पीछे के दो पैर उससे भी ज्यादा अच्छे चलते हैं। आपको पता भी हाँ, नहीं लगेगा, आप आगे के पैर या मुंह पकड़ते रह जाओगे, पीछे के पैर से अपना काम कर जाएंगे। yeah, तो वो right, right. हुआ, डॉक्टर, डॉक्टर का अटेंडेंट, मेरा हस्बैंड, बेटी, सब नुचे पटे कटे आए। अल्टीमेट जो इधर उधर से ब्लॉक्स लग सके वो लगाए। नेक्स्ट Hmm. केम, ये सेड अगर तेरे को अपना बिल्ला को जिंदा रखना है तो तू चल, हम नहीं जा रहे। और डॉक्टर ने बोला मैडम के बिना आना मत, हम नहीं करेंगे आपके बिल्ले Yes. को। हम Hmm. जैसे नेक्स्ट ऑब्वियसली आई हैड टू गो। और मैं गई और मैंने उसको रखा, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम स्नोबल हिलेगा तो थप्पड़ खाएगा। एंड ही, Hmm. और उसका पूरा सारा उसका ट्रीटमेंट हुआ और वापस आ गए, सब कुछ हो गया। बट तो उस दिन बिल्कुल नहीं हिला, बिकॉज ही न्यू। तो ये सब यही कहते थे कि ये ना, अगर बिल्ली को लाना होता तो डॉक्टर हमेशा राजीव को कहते थे सब बिल्ली ला रहे, कहते हाँ वाइफ के बिना मत आना वरना आना ही मत। Yes. I can't control, nobody can control your cat except her. So Right. anyway, she's no more, माने he is no more. But ठीक है। सो जो Hmm. आपने अभी बोला ना, मेरे को एक इंसिडेंट ऐसा मेरा अपना कनेक्ट कर गया उसके साथ ही, बिकॉज आई ऑल्सो कीप रेस्क्यू एंड अबैंडन्ड डॉग्स, एंड उनको रेस्क्यू करके मैंने इलाज वगैरह। सो दैट इज वाई मेरे को ये था कि शायद आपके भी ऐसे ही हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट जस्ट गेट ऑन टू द स्किन, बिकॉज मेनी पीपल मैम, इनको ये रहता है कि कुत्ता तो इतना बड़ा हो गया है, कुत्ता 8 साल का है, 4 साल का है, 9 साल का है, हम इसको रेस्क्यू करेंगे तो कैसे करेंगे, हम उसको पालेंगे तो Hmm. हमारे तरीके से नहीं डलेगा। लोगों को एक बहुत गलत धारणा है कि पपी लाने से ही कुत्ता ठीक से पलता है, अगर आप बड़ा Yeah, कुत्ता घर में लाओगे तो वो नहीं पाल सकते, वो yeah. तरीके नहीं बदलेगा। विच एज Hmm. अ डॉग लवर मैं आपको बताती हूँ, एंड यहाँ पे सबको बताती हूँ, आई एम श्योर मंजू जी विल एग्री विथ मी, कि हमको ये देखना है कि वी शुड गिव देम TLC, विच मीन्स ट्रस्ट, वी शुड बिल्ड द ट्रस्ट, वी शुड गिव लव एंड केयर। TLC अगर हमने दिया तो वो है Right. कुत्ता, ये अडॉप्टेड कुत्ता, ये रेस्क्यू कुत्ता है, वो Hmm. इंसान नहीं है इसलिए तुम्हें प्यार करेगा। वो हाँ. इंसान नहीं है इसलिए वो एक सूखी रोटी के लिए भी तुम्हें देख के दुम हिलाएगा। वो Right. इंसान नहीं है इसलिए वो तुमसे कुछ मांगेगा नहीं। और वो सही. इंसान नहीं है तुमसे कोई फायदा नुकसान देखे बिना वो तुम्हारे से एडजस्ट करेगा। सो Right. कुत्ते को कुत्ता बोल के उसके लिए वो मत करो। हाँ. दे आर वेरी सेल्फलेस। ये हम इंसान हैं जो सेल्फिश होते हैं, इसीलिए Hmm. हम ये अपने सेल्फिश जो नजरिया कुत्तों के ऊपर थोपते हैं। अगर आप कुत्तों को धोकोगे तो वो ऐसे नहीं देखते, दे नहीं जस्ट दिखते. Right. विल लव देम एंड केयर फॉर देम। आगे Hmm. का तो कहानी नहीं, उसके बाद सिर्फ दुम मिलती है। सो दिस इज वन पॉजिटिव मैसेज मंजू जी। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे, मैंने मेरे प्लेटफॉर्म पे आपके साथ, बिकॉज यू आर ऑल्सो डॉग लवर, यू विल एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। सो Yes. आई थॉट कि चलो जब अब बात निकली है तो माइट जस्ट कन्वे दिस पॉइंट कि जैसे मंजू जी ने करा है करिए, एंड आप देखेंगे इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। इंसानों Yeah. को सीधा करना मुश्किल है, जानवरों। Hmm. तो मंजू जी बिफोर वी एंड थोड़ा सा, एक तो मेरे को आपका वो अरुणाचल स्टेट अवार्ड का बताइए थोड़ा सा, एंड उसके साथ एक पोएट्री सुनेंगे आपकी और फिर हम एंड करेंगे। Okay. Okay. So, uh, so as this month is dedicated to women, तो आप कह रहे हो तो चलो आज मैं वुमेन के ऊपर ही मैं हिंदी में कविता सुनाती हूँ आपको। मैम उससे पहले आई एम थोड़ा फॉन्ड ऑफ राइटिंग। बताइए, आपका थोड़ा वीडियो जी जैम था, तो आपका जो अरुणाचल स्टेट अवार्ड मिला था ना टीचिंग के लिए, जी 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 2 लाइन में मिला था। हाँ, बताइए, देन कविता एंड देन वी एंड।
Yeah, in year 2019, I was honored with the state award by Government of Arunachal Pradesh for my services in the teaching profession. And my principal at that time, he was Apple Time, and he told me that why don't you nominate yourself? And you know, मैम, जब उन्होंने कहा खुद को nominate करो तो मुझे बड़ी hesitation हुआ. Why should I nominate myself? If you think me that yes, I can become an awardee for that. So whatever you want to write for me, why don't you send all those things for me from your own side? क्योंकि खुद के बारे में कुछ लिखना ना बहुत हेजिटेशन लगता है. But the person he was such a nice person. मीन्स ऐसे प्रिंसिपल्स भी जल्दी मिलते नहीं है. मैंने लाइफ में कितने हेडमास्टर प्रिंसिपल के अंदर काम कर चुकी हूँ, बट दैट पर्सन स्पेशली द वे ही यूज्ड टू give us inspiration. He used to push in front. That was really admiring thing. अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके कहने से मैंने खुद को नॉमिनेट किया. मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स थे खुद बनाए मैंने, रिज्यूमे मैंने बनाया, सब कुछ बनाया मैंने, फॉरवर्ड उन्होंने कर दिया. एंड आई वॉज सो अमेज्ड. मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं सेलेक्ट भी कर ली जाऊंगी. बट यस, मैंने कहा ना, लाइफ में जो चीज मैं कभी सोचती नहीं हूँ, जस्ट रैंडमली जो मैं पास करती चली जाती हूँ, कई बार वहीं से मुझे वो चीजें मिल जाती हैं जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ. क्योंकि ये अवार्ड, दिस इज अ ग्रेट अवार्ड. स्टेट अवार्ड मीन्स जब मुझे डिक्लेयर्ड हुआ यस मंजुलता फ्रॉम डाइंग रिंग मेमोरियल स्कूल इज गोइंग टू गेट स्टेट अवार्ड, आई वाज ओ माय गॉड. सपना तो नहीं देख रही हूँ ना मैं. एंड व्हेन आई टोल्ड टू माय हेडमास्टर कि सर कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे ना, आप मेरे को सही बता रहे हो क्या? बोले कि अरे बिकॉज यहाँ पे मुझे लता मैम करके बुलाते हैं. लता मैम, भरोसा रखो, यू डिजर्व दैट. आप हो, और जितने उसमें नॉमिनेशंस आए थे, यू आर द बेस्ट. आपकी फाइल सबसे बेस्ट बनकर यहाँ से गई थी. जितने, क्योंकि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ करके आप ही करते हो. अदरवाइज सो मेनी पीपल वेर देयर हुज नॉमिनेशंस वेर देयर. किसी के फाइल में ये चीजें नहीं थी. बिकॉज आई टोल्ड यू वन थिंग, आई एम ए योगा प्रैक्टिशनर. मैं कराती हूँ, करती भी हूँ. सेकेंड थिंग, आई एम द पैट्रॉन ऑफ मातृ भारती. तो पैट्रॉन होने के नाते मेरे पास था उस समय. अनदर थिंग मीन्स लेडी आरएसएस की मैं जिला बौद्धिक प्रमुख भी बहुत सालों तक रही, वो भी मेरे पास रहा. तो ये 3 चीज मेरे पास थे. और योगा तो एवरीडे. और योगा दिवस पर मेरे जो वीडियोस बने वो सब बने. मेरे प्रिंसिपल सब मेरे बारे में जानते थे. उन्होंने कहा था स्पेशली इसको सब हाईलाइट करना तुम इसमें. जो भी तुम्हारी छोटे छोटे क्लिपिंग्स है ना, वो सब तुम लेकर आओ मेरे पास. उसको कहाँ कैसे कनेक्ट करना वो मैं खुद करूंगा. तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैं जितना तुमको कहता हूँ उतना लेकर तुम मेरे पास आओ. ऑल द फोटोग्राफ्स आई कलेक्टेड, दो स्मॉल स्मॉल, क्योंकि राष्ट्र सेविका समिति होने के नाते एक छोटा सा था मेरे पास. मातृ भारती की पैट्रॉन होने के नाते एक कंप्लीट मेरा लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड मेरे पास लकीली पड़ा हुआ था. वो सब मैंने उनको लिया कर दिया. फिर उन्होंने उसको सेव किया. सेव करने के बाद से उन्होंने फॉरवर्ड किया. तो वहां से ये खबर आई कि इतना सारा काम तो इसी के साथ था. और बाकी बस एक ही काम उन्होंने कहा कि तुम कुछ लिखती भी हो. मैंने कहा सर अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला. हाँ, स्कूल मैगजीन्स के लिए लिखा है, बट अदरवाइज कभी ये काम नहीं किया. बोले काश ये भी प्लस हो जाता ना, तो कुछ और भी मजे आ जाते ही. तो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे देखते हैं, कभी मौका मिला. तो आफ्टर दैट ओनली द कोविड स्टार्टेड. एंड कोविड स्टार्ट मीन्स कोविड तो खैर हल्का फुल्का स्टार्ट हो ही गया था, लेकिन एसओपी तब तक जारी नहीं हुआ था. और जब मैं स्टेट अवार्ड लेकर आई, प्रिंसिपल ही वाज सो हैप्पी, माय हस्बैंड ही वाज सो हैप्पी, माय चिल्ड्रन दे वर सो हैप्पी. और मेरे लिए तो वो चीज जैसे बहुत बड़ा क्राउन मेरे सर पर रखा गया हो. आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी. चलिए मैम, फिर मुझे आई थिंक आपके लाइट चला गया है ना. आज पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस इस समय है नहीं लाइट.
मेरे तो को चलिए मैं आपको सुना देती लाइट हूँ। निकल के लीजिए आ गया। हाँ, चलो गुड। हाँ चलो तो मैं आता औरत के ऊपर मैं आपको अपनी ही लिखी एक कविता सुनाती हूँ। औरत शब्द ही दर्शाता है, औरत शब्द ही दर्शाता है अथाह शक्तियों का मलिकाना। औरत शब्द ही दर्शाता है अथाह शक्तियों का मलिकाना। कहलाती है कुमलांगी, लेकिन कितने ही रूपों को समाये रखती है अपने अंदर। माँ, बहन, बेटी, बहू, सास, हर शक्ति है खुद में अथाह। सारी सृष्टि भी अगर खड़ी हो जाए तो भी आंख न पाए उसकी शक्ति को, यानी अथाह शक्तियों की मालकिन। औरत ही हर शक्ति, औरत की हर शक्ति दिव्यता से है भरी। माँ शब्द तो खुद ही है अनंत आकाश। माँ शब्द तो खुद ही है अनंत आकाश, जिसका ना है आदि ना है कोई अंत। बहन शब्द जाने कितने भाइयों की है शक्ति। बेटी जैसे घर की है आभा होती, उससे ही है घर जगमगाता। बहू त्याग समर्पण से सबको जोड़ने की ताकत है रखती। पत्नी बन पति की जिंदगी संवारती, और जब वो सास बन जाती अपने अनुभव से पूरे घर को मार्ग दिखाती। नई पीढ़ी को अपने अनुभव का ताज पहनाती। ऐसी अनंत शक्ति की देवी है औरत। फिर औरत क्यों क्यों तू हर वक्त चली जाती। जगा अपने अंदर की शक्ति को प्रज्वलित कर, दुष्टों से लड़ने को तैयार रह। तेरे अंदर की शक्ति तुझे खुद साबित करेगी। नहीं है तू अबला पर है सर्वशक्तिमान। तो ये है मेरी छोटी सी कविता। सो मच। इट इज सच अ पॉजिटिविटी पोएम। थैंक नॉर्मली यू। मैं औरत के ऊपर जब पोएम सुनती हूँ ना, तो कई पोएम ऐसी होती है जिनसे औरतों पे जुल्म ही होता जा रहा है, जुल्म ही होता जा रहा है, रोती अबला औरत। बट जो आपने औरत बताई है वो अबला नहीं है, वो स्वयं एक शक्ति है। एंड यस आपने सारी पॉजिटिविटी या बाहर निकाली है, एंड दैट इटसेल्फ इज सो पॉजिटिव। So, ये सुनने के बाद किसी को ये नहीं लगता, इवन लेडीज को भी नहीं लगता कि हम अबला है। हम अबला नहीं है। या जब कोई लोग पोएट्री लिखते हैं तो औरतों को अबला बना देते हैं, तो आपकी पोएट्री में कहीं राइट नारी अबला नहीं है, वो शक्ति स्वरूप है। एंड दैट इज व्हाट आई रियली लाइक। या So thank you ma'am, thank you so much for थैंक यू joining us today. And हाँ, थोड़ा सा रफ वेदर गया या था, पहले मेरे यहाँ से इंटरनेट, फिर आपके वहां से इंटरनेट, फिर बीच में लाइट चला गया। बट वो कहते हैं ना, जब हमने सोच ही या लिया करना है तो फिर हो ही गया। तो एनीवे हो गया। सच में हो गया हमारा। So thank you so much ma'am. I'll be making the videos etc. and then sharing it with all of you, because ये आज मेरे को Zoom पे लाना पड़ा, not my platform. So, but here before ending, I would like to thank Manju Lata ji and congratulate her again. First, thank her for coming to on our platform after a busy day at school. और इसके बाद ये फिर लग जाएंगे अपने बच्चों की, या तो कॉपीज के साथ, या तो फ्लावर्स के साथ, या डॉग्स के साथ। सो ठीक है। एंड फॉर अगेन फॉर congratulating her for RN Talks स्वामी विवेकानंद कर्मवीरा अवार्ड्स, जो कि एक या कर्मवीरा को मिला है, जो कि ये है। So thank you so much and congratulations for both, and we'll take your leave now, ma'am. Tata. थैंक यू टू यू ऑल्सो फॉर सेलेक्टिंग मी एज कर्मीरा। और मैं आपको बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूंगी कि आप चुन चुन के लोगों को लाते हो सामने। अदरवाइज हम जैसे लोग, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि एक बार आपने मुझे राधा कृष्णन अवार्ड दिया और इस बार मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू। Platform for like common people, we make them uncommon. Like so, thank you, and I'm so happy that you're here. ओके थैंक यू टू यू ऑल्सो। So thank you so much, everybody. आज आप लोगों ने हमको join किया है. We met Mrs. Manjulata over here.
and she's been a great source of inspiration. वो क्या क्या नहीं करती, from flowers to taking care of like orchids and growing a beautiful huge gardens, to yoga instructor, to being a mentor, to a poetess, to an author, and a pet parent. She's everything, and it was indeed a big pleasure for us to meet her here, and she's also an RSVK 82023 awardee. So that was Mrs. Manjulata for you. कल हम मिलेंगे एक अलग अवॉर्डी से, उनका नाम है उषा वर्धन शर्मा, एंड वो भी मेंटर है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ यहीं पे आर टॉक्स प्लेटफॉर्म पे, and we'll meet you all tomorrow. Till then, Tata, have a good day.